لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی عمارت شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ ہسپتال کی عمارت مخدوش ہونے کے باوجود بھی آپریشنل۔ پی ٹی آئی دور نے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کو ناقابل استعمال قرار دیا تھا۔ ہسپتال کو ناقابل استعمال قرار دے کر رپورٹ تیار کر کے سابقہ حکومت کو پیش کی، مگر اس کے باوجود ہسپتال ابھی تک آپریشنل ہے۔ 3 سالہ پرانی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس میں ہسپتال کی پرانی عمارت، انڈور بلاک اور نرسنگ ہاسٹل کو خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ بلڈنگ ریسرچ اسٹیشن نے ہسپتال کے انڈور بلاک اور نرسنگ ہاسٹل کو فوری طور پر استعمال سے بھی روک دیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ عمارت انسانوں کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا اسے فوری گرا کر نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ رپورٹ میں لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی بحالی پر کروڑوں کے اخراجات کی بجائے نئی عمارت کی تعمیر کی سفارشات کی گئی تھی۔ بلڈنگ ریسرچ اسٹیشن لاہور نے رپورٹ میں ہسپتال کی عمارت کو فوری طور پر گرانے کا کہا تھا، مگر اس کے باوجود مخدوش عمارت میں مریضوں کا علاج معالجہ جاری ہے، جو ان کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ریلوے حکام کے نئے بحالی کی جانے والی ٹرینوں کے ساتھ تجربے ناقص حکمت عملی سے ٹرینیں لاکھوں روپے خسارے سے چلائی جانے لگی۔ ریلوے حکام کی جانب سے گراؤنڈ کو جانچنے بغیر من پسند فیصلے کیے جا رہے ہیں، جبکہ کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس 886 اکانومی کلاس سیٹوں میں سے 90% سے زائد سیٹیں خالی ہیں۔ کی جانب سے نئی بحال کی جانے والی ٹرینوں کے ساتھ تجربوں کا عمل جاری ہے۔ ناقص حکمت عملی سے ٹرینیں لاکھوں روپے خسارے سے چلائی جانے لگیں۔ ریلوے حکام کی جانب سے گراؤنڈ ریالٹی کو جانچے بغیر من پسند فیصلے کیے جانے لگے۔ شالیمار ایکسپریس کو براستہ ساہیوال چلانے سے روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس 886 اکانومی کلاس سیٹوں میں سے 90% سے زائد سیٹیں خالی رہیں۔ روزانہ لاکھوں روپے نقصان کے بعد شالیمار ایکسپریس کو دوبارہ براستہ فیصل آباد کراچی بھجوانے پر غور شروع کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ شادیوں پر ویلیں بند، پولیس کے ریڈ بڑھ گئے، جبکہ پولیس بینڈ کی فیس میں 120% اضافہ کر کے ویلیں اور اضافی رقم وصول کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کے اندر پولیس بینڈ کی بکنگ 18,000 سے بڑھا کر 40,000 اور 100 کلومیٹر کی رینج میں بکنگ 65,000 روپے کر دی گئی ہے۔ پولیس بینڈ کو جدید آلات کے ساتھ لیس کرنے کے ساتھ سٹاف کی کمی کو بھی پورا کر دیا گیا ہے۔ بینڈ کی کمرشل بکنگ کے ریٹس اثر نو متعین کیے گئے ہیں۔ پولیس ملازمین کے بچوں کی شادیوں کے لیے 50% اور شہداء کے بچوں کی شادی کے لیے 80% رعایت ہوگی۔ رقم کا 40% ویلفیئر فنڈ، 20% وردیوں اور 40% بینڈ ملازمین کے انعام کے لیے خرچ ہوگا۔ ہر ضلع میں آرکیسٹرا میں 14، براس بینڈ میں 33 اور پائپ بینڈ میں 32 ملازمین شامل ہوں گے۔ بینڈ پولیس کے ٹوٹل 755 ملازمین میں 9 انسپیکٹرز، 28 سب انسپیکٹرز، 55 ASI، 98 ہیڈ کانسٹیبلز، 420 کانسٹیبلز اور 145 کانسٹیبلز ریزرو ہوں گے۔ بینڈ پولیس میں بھرتی سروس اسٹرکچر کا طریقہ کار بھی طے کر دیا گیا ہے۔ بکنگ، فنڈز کے استعمال اور آڈٹ کے لیے کمیٹیاں مقرر کر کے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے میں جائیدادوں کے فراڈ اور حقیقی مالکان اور خریدار کو محفوظ قانونی راستہ دینے کا معاملہ التوا کا شکار۔ بونافائیڈ پرچیزر کے لیے ایل ڈی اے بونافائیڈ کمیشن 2.5 سال سے غیر فعال۔ کمیشن کے غیر فعال ہونے سے 600 سے زائد متاثرین کی درخواستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا، جبکہ سابق دور حکومت میں کمیشن دوبارہ بنانے کے لیے اسمبلی بھجوائی گئی تھی۔ سابق دور حکومت میں غیر متعلقہ شخص کو ممبر بنانے کا متنازع فیصلہ کالعدم ہوا۔ نگراں حکومت میں 1 ماہ قبل ایل ڈی اے نے بونافائیڈ کمیشن بنانے کی اسمبلی ارسال کی تھی، تاحال بونافائیڈ کمیشن کے قیام کی اسمبلی پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایل ڈی اے کے پلاٹوں کی خریداری میں فراڈ کا شکار حقیقی خریدار انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں۔ شہریوں کی حل شدہ مسائل پر درخواستوں کا گراف 600 سے زائد ہو چکا ہے، جبکہ سائلین ایل ڈی اے دفاتر، بونافائیڈ کمیشن اور ایل ڈی اے ہاؤسنگ کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں۔ شہریوں کے نگراں وزیر اعلیٰ سے بطور چیئرمین ایل ڈی اے کمیشن کے فوری قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فائنانس بل 2023 میں کاروبار اور ٹیکنیکل بے ضابطگیوں کے متعلق نشاندہی کے لیے کمیٹیز تشکیل دے دی گئی ہیں، جبکہ نجی سیکٹر کے ممبران مختلف چیمبرز آف کامرس اینڈ ٹریڈ باڈیز کے تاجروں کو 19 جون تک اپنی سفارشات پیش کرنے کا وقت دے دیا گیا ہے۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو عاصم احمد نے کاروبار اور ٹیکنیکل بے ضابطگیوں کے متعلق نشاندہی کے لیے کمیٹیز تشکیل دی ہیں۔ بزنس بے ضابطگی اور ٹیکنیکل بے ضابطگی کے نام سے 2 کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں۔ بزنس بے ضابطگی کمیٹی کی سربراہی صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فیصل آباد ڈاکٹر خرم طارق اور ٹیکنیکل بے ضابطگی کمیٹی کی سربراہی RRMC کے چیئرمین اشفاق یوسف کریں گے۔ ان کی معاونت کے طور پر 2 کمیٹیز کی سربراہی ثریا احمد بٹ اور آفاق احمد قریشی کریں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ممبران مختلف چیمبرز آف کامرس اینڈ ٹریڈ باڈیز کے تاجر سفارشات پیش کریں گے۔
लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के माली मामलात में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। बेज़ाब्तियों की शिकायत सुबह भर के 9 तालीमी बोर्ड्स का ऑडिट स्टडी करवाई जाएगी। ऑडिट फर्म की सिफारिशात की रोशनी में इस्लाहात लाई जाएंगे। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के माली मामलात में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। बेज़ाब्तियों की शिकायत पर तमाम तालीमी बोर्ड का ऑडिट स्टडी करवाने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड्स की तारीख में पहली बार ये ऑडिट स्टडी करवाई जाएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने ऑडिट स्टडी करवाने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी है। ऑडिट स्टडी में गुज़िश्ता 5 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। ऑडिट थर्ड पार्टी से आज़ादाना तौर पर 100% मेरिट पर करवाया जाएगा। ऑडिट फर्म बोर्ड के माली मामलात को बेहतर करने के लिए तजावीज़ भी पेश करेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए दाखिला टेस्ट में फेल होने वाले तलबा को एक और मौका देगी। 25 जून के टेस्ट में गैर हाजिर या फेल होने वाले तलबा का दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी पहली बार अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए टेस्ट मुनाकिद करने जा रही है। अंडर ग्रेजुएट के तमाम तालीमी प्रोग्राम्स के लिए 7 मुख्तलिफ इम्तिहानात लिए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी है। मुल्क के तमाम अहम शहरों में पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिला एंट्री टेस्ट मुनाकिद होंगे। हजारों तलबा ने एंट्री टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखी है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए 25% नंबर तहरीरी दाखिला इम्तिहान के लिए मुख्तस हैं। उम्मीदवार अहलियत के मायार और दीगर तफसीलात के लिए वेबसाइट पर रजू करें। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपये मजीद सस्ता 294 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 89 पैसे कमी हुई, 287 रुपये 18 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 294 रुपये का हो गया। 2 दिनों में ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 11 रुपये कम हुआ है। इंटरबैंक में भी अमेरिकी डॉलर 79 पैसे सस्ता होकर 287 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में यूरो 6 रुपये सस्ता 315 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 7 रुपये सस्ता होकर 366 रुपये का हो गया। इमाराती दरम की कीमत 1 रुपये कम होकर 81 रुपये 50 पैसे हो गई। यहाँ पर आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो से साबिक MPA सानिया कामरान, परवेज़ रफ़ीक की मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद एहसन रिजवी और ज़ीशान शामी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने शिरकत की, जबकि मियाँ अयूब, नीलम अब्दुल जब्बार और आयशा गौरी समेत दीगर कारकुनान भी शरीक थे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से PTI की साबिक रुकन पंजाब असम्बली सानिया कामरान ने जो है वो आज बिलावल हाउस में मुलाकात की। सानिया कामरान ने आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था, जबकि इस मौके पे सबका MPA परवेज़ रफ़ीक ने जो है वो भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से जरदारी से मुलाकात की। जबकि मुलाकात करने वालों में सेक्रेटरी रिकॉर्ड एंड इवेंट पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद एहसन रिजवी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर ज़ीशान शामी भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा, मियाँ अयूब, नीलम अब्दुल जब्बार और आयशा गौरी, उमर अयाज समेत दीगर जो रहनुमा हैं पार्टी के वो भी मौजूद थे इस मौके पे मौजूदा। ठीक है हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मरियम नवाज से सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर की मुलाकात। मरियम नवाज से ख़वातीन विंग लाहौर के सदर सादिया तैमूर की मुलाकात हुई, जबकि जनरल सेक्रेटरी लाहौर इमरान नज़ीर ने भी मरियम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्टी के तंजीमी अमूर का जायज़ा लिया गया। तमाम हलकों के ओहदेदारान से मुलाकातें भी की, जबकि तंजीमी कन्वेंशन पर मुशावरत की गई है। आपको बताएं कि मरियम नवाज से ख़वातीन विंग लाहौर की सदर सादिया तैमूर की मुलाकात। जनरल सेक्रेटरी लाहौर इमरान नज़ीर ने भी मरियम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी अमूर का जायज़ा लिया गया। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से साबिक MPA राना लियाकत अली की क़यादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, तजावीज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचाऊँगा। सूबाई बैतुल माल कौंसिल का तारुफी इजलास अमीन बैतुल माल पंजाब जुबैर गनी की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब और सेक्रेटरी बैतुल माल कौंसल मुदस्सर रियाज मलिक ने भी शिरकत की। डायरेक्टर प्लानिंग मोहम्मद सुलेमान ने इजलास के शुरका को बैतुल माल कौंसिल के तंजीम और अगराज़ व मकासिद से आगाह किया। कौंसिल के इख्तियारात और शफाफ तरीके से बैतुल माल के फंड्स की तरसील के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया।
शहर की ताजिर बरादरी बैंक ट्रांजैक्शंस पर आयद टैक्स को मुस्तरद कर दिया। लाहौर चैम्बर ने भी तुलबा, बेवा जबकि मरीजों, पेंशनर समेत दीगर तबकात के लिए बैंक से रकूम निकलवाने पर टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वफाकी बजट में बैंक ट्रांजैक्शंस पर दोबारा 0.6% टैक्स आयद कर दिया, जिस पर ताजर बरादरी, शहरियों, तुलबा, पेंशन्स समेत दीगर तबकात की जानिब से तनकीद की जा रही है। कारोबारी बरादरी ने कहा, मैं समझता हूँ कि जी 0.6% को स्पेसिफिक चंद एक जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो अडल्ट नहीं हैं, माइनर जो हैं उन पे, बेवा पे और पेंशनर पे और जो ओल्ड 65 प्लस लोग हैं उन पे, जो रिटायर्ड हैं या नॉन रिटायर्ड हैं या जिनकी कोई तकरीबन 2 लाख से कम वो अगर विड्रा करते हैं तो उस पे ये टैक्स नहीं होना चाहिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान की डिजिटल शनाख्त और पंजाब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के माबैन मुआहदा तय पाया गया। मुआहदे पर CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने दस्तखत किए। तक़रीब में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत व तवानाई असम तनवीर मेहमान ख़ुसूसी थे। मुआहदे पर CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ ने दस्तखत किए। इस मुआहदे से आलमी सतह पर पाकिस्तान की डिजिटल शनाख्त को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और पंजाब में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ मिलेगा। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत असम तनवीर ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के माबैन इश्तिराक कार का मुआहदा खुशाइंद है। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत सिटी डिवीज़न की इंसदाद जायम मीटिंग में मुतल्लिक़ा अफसरान की शिरकत, सिटी डिवीज़न की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। जबकि इमरान किशोर के अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत, ज्वेलरी शॉप्स, बैंकों और करेंसी एक्सचेंज पर पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत की गई। मुनशात की तरसील को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की गई है, जबकि थानों में कायम फ्रंट डेस्क को SOPs के तहत फ़ाल रखने का हुक्म भी दिया गया है। सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए तमाम थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान समेत तुलबा ने भी खून के अतियात दिए। जबकि ब्लड कैंप में सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान की शिरकत, मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान गिलानी ने भी शिरकत की। खून के अतिया से लाखों मरीजों को नई जिंदगियां मिलती हैं। अलीगुर रहमान कहते हैं कि थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया बड़ी नेकी है। थैलीसीमिया से बचाव के लिए आवाम में शऊर उजागर करना होगा। सुंदस फाउंडेशन की मरीज बच्चों के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की IG पंजाब से मुलाकात। सिपा की जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और तरबियत, फलाह व बहबूद के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। जबकि पंजाब पुलिस के शोहदा और अहलकारों के बच्चों के लिए अखुवत जदीद तालीम और तरबियत कैपेसिटी बिल्डिंग में मुआवनत फ्राहम करेगा। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि मुनशात का शिकार ट्रांसजेंडर्स के इलाज, मुआलजे और बहाली के लिए पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका लाया अमल अपनाएंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के पुलिस मुलाजमिन के बच्चों का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। बच्चों ने ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर भर का निज़ारा किया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तायुनात पुलिस मुलाजमीन के बच्चों ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया। CPO मुलाजमीन के बच्चों ने ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर भर का निज़ारा किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लम्स के सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस डिजिटलाइज सिस्टम से 20% कीमत को कम किया जा सकेगा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मौका पर गुफ्तगू करते हुए CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना था कि लम्स यूनिवर्सिटी की मदद से गुलबर्ग टाउन के तमाम गाड़ियों के रूट्स को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किलोमीटर्स और गाड़ियों के नंबर को कम किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से तकरीबन 1 लाख लीटर फ्यूल की बचत यकीनी बनाई जाएगी। PITB के साथ मिलकर जदीद अटेंडेंस एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है। एप्लीकेशन की मदद से गुज़िश्ता 4 महीने में 1000 के करीब गोश्त मुलाजमीन को निकाला गया। हमारे 6000 से ज़्यादा कंटेनर्स जो हैं वो लाहौर शहर में मौजूद हैं, तो उनको किस टाइम पे हमने क्लियर करना है, उसके लिए हमने एक हॉटस्पॉट एप्लीकेशन डेवलप की, जिससे तमाम कंटेनर्स की जो क्लियरेंस है वो अब हमें दिन में 2 दफ़ा आती है कि सुबह 10 बजे जो है वो कितने % कंटेनर्स इनमें से
क्लियर हो चुके हैं। डॉक्टर मोमिन ओपल का कहना था कि सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी शहरियों के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। गुलबर्ग टाउन से लाहौर और फिर पंजाब भर के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। एल्गोरिथम हमें सिर्फ ये बताता है कि ये वाली गाड़ी को पहले इधर जाना चाहिए, ये वाला बिन कलेक्ट करना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए, फिर अगला बिन कलेक्ट करना चाहिए, और ये वाली गाड़ी सिर्फ ये वाले बिन कलेक्ट करेगी। अगली वाली गाड़ी कौन कौन से करेगी वो भी आउटपुट में आ जाता है। ये आउटपुट है। अब जो इम्प्लीमेंट करना है वो ऑफ कोर्स हमने बंदों ने मिलकर करना है। इब्तदाई तौर पर गुलबर्ग टाउन में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन की गई हैं। मरहलावार पूरे लाहौर में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।